شو لما انا شي زو هذا كلاس اي ار ار اکیډمي دا کوڅه دا غې ده نئی کلاس جوړ اپلوډ شوی دی ته ماته وی زور نه وې ده 3 جنوري باندې پرون دا بل ول دا شوی نه مړه یار نه وې شوی کلاس ته هغه صرف اپلوډ کړي یا نیو لینک ته دا عمره بکا Okay, Assalamu alaikum. So, वालेकुम अस्सलाम मैं जल्दी से प्रेजेंट कर लूँगा क्योंकि फिर बिजली नहीं होती बाद में। उमर आप हेल्प करो मेरा। ठीक है उमर, आप ऐसा करें कि शफीउल्लाह जो कि he can't listen, he has some problem with his net. I guess Shafila had problem or somebody else. I don't know, but you have to give him instructions. And I'm making him host, and later on I am going to guide you about, you people about your exams. But at first, let me make him host so that he will be able to present. Okay. So this is the last day that you guys can present. So anyone who is still up to present, who is still waiting to present, must present today. I have made Shafullah as host. Kindly you might tell him, text him that he can share his screen now, and then he can start his presentation. Ji Shafullah. Muhammad Umar, kindly guide him to share his screen and start presenting. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कह रही है कि स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करें। ओके 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 मैम सिक्योरिटी चैट All of you have to it's मैं सेटिंग कर necessary. रहा हूँ, वेट करें। Okay, so all others, those who are on call or those who are in class, please kindly make sure that you participate equally, because you are just attending class and not responding to questions isn't what I want. So if you are there, so make sure you are complete presence, and do focus on the presentation. Also kindly note down the questions that you may have any question about presentation or regarding presentation. Please note it down, and it will be counted as your participation in the class. So I ask right after the presentation. You have to ask questions, okay, all of you. Let me check who are there. There are 9 participants: Umar, Gul, Nimra, Shakir, Wakar, Zeni, and Faiz. So all of you make sure that you guys are noting, you guys are writing down questions that you have to ask right after the presentation. So till then, Shakir gets ready. No, Shakir, yeah, Shakir is going to present, or whom? Shafullah. Yes, ma'am. Shafullah, I guess, is going to present right now. So till then, Shafullah is going to present. Let us discuss something about your exam. So in your अस्सलामुअलैकुम Walaikum Assalam. मैम ये कितने चैप्टर्स आएंगे मैम सिलेबस आप बता दें जरा Yeah, मैं भी आया हूँ क्लास में Okay, no problem. मैं यही डिस्कस करने लगी हूँ. So ओके मैम am I audible to you people? Is my voice clear? जी जी मैम आवाज आ रही है साफ Okay. So I guess in your first internal exam there were 2 chapters,
Introduction to Finance and Types of Business Organization, right? These two chapters were included. So your first internal, there were 2 chapters, first and second. In your second internal, I gave you 3 chapters. First, second, Yeah. the fourth one, shares and share capital. The seventh one, Security and Exchange Commission, and the 8th one, Stock Exchange. That was in your second internal exam. So which other chapters are remaining? Formation and Incorporation, the chapter number 3, that is going to be in your final term. Kindly note it down, Waqar, and you are responsible to inform all other students. Okay मैम, Your लिख रहा हूँ WhatsApp मैं. group. मैम एक Formation. मिनट सब्र कर, मैं नोट डाउन करता हूँ मैं. Okay. ये कॉपी ले रहा हूँ. Sure, take your time. यस मैम, अभी बता दें. Okay, chapter number 3, that is Formation and Incorporation. Chapter number 6, Time Value of Money. Screen sharing option नहीं है. टाइम. Okay मैम, हो गया ये. Can you new share, where there is an option like new share, from there you can have like you can get an option for sharing your screen, Shafila, in case if you are getting troubled. Okay, second one is formation, then sources of finance. Okay मैम. And importance of finance, the chapter 5. How many chapters have you written? The third, Maybe fifth? Formation and incorporation of company, or time value of money, or sources of Yes. income. So these are the 3 chapters which are included in your final term, and let us check out like how much we have covered so far. I guess your complete course has already been done. So, but let's have a look. मैम ये 5 चैप्टर जो है वो sources of finance and importance of finance. Yes. Like formation of a company, private company, public company, promotion stage, incorporation stage, Security and Exchange Commission of Pakistan, you have already studied. You have to go through the Article of Association. Article of Association is going, like, I guess Asad is going to present Article of Association. Tell him to formation present. and incorporation of company में आ जाते हैं ना ये Articles of Association or Yes. Memorandum of Association. Yes, exactly. So Memorandum of Association तो आपको करवा दिया नासिर ने in his presentation. Yes ma'am. And Article of Association करवाएंगे Asad, I guess. I don't remember who. Like आपके पास लिस्ट होगी, प्लीज क्रॉस चेक करें, और जिसके भी ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसने भी लिया था उनसे कहें कि प्रेजेंट करें एट एनी कॉस्ट इन नेक्स्ट क्लास, इफ नॉट टुडे. ओके मैम. उसको तो हर हाल मैम में ये 3 प्रेजेंट चैप्टर फाइनल टर्म में आएंगे मैम. जी फाइनल टर्म में. ओके मैम. ये मैं मेमोरेंडम ग्रुप वालों के साथ शेयर करता हूं मैं फिर. जी आप ग्रुप के बाकी साथ क्लासमेट के साथ. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप लोग डेप्थ में देख लें. ये आपको दैट्स इट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है. ठीक है, memorandum of association and article of association. Next one is sources of finance and importance of finance. Let's check it out. इसमें आपके कौन से टॉपिक्स हैं? ये रिजल्ट ज़लोगे. Okay, so sources of finance ये हमने किया है. Finance, shares, debentures, bonds, right shares, venture capital, mutual funds, right? So यही short term financing, long term and medium term ये हम सब कुछ कर चुके हैं, right? ये आपका इंक्लूडेड है. शेयर्स आपने किए हुए, इक्विटी शेयर्स, और ये जो शेयर्स है ना, ये जरा आप डेप्थ में देख लें, राइट? और अगर आप लोगों को चाहिए कि ये मैं आपको डेप्थ में करवा दूं, मैंने वैसे आपको करवाया था क्लास में भी, इन योर क्लास, लेकिन इफ़ यू वांट कि मैं आपको डिटेल से करवा दूं तो मैं यहाँ पे डिटेल से आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, नेक्स्ट वीक. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों को आप डिटेल में देख लें. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैं करवा देती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, ये मैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी इंशाल्लाह. ओके मैम. ये एग्जाम में तो इंक्लूड नहीं है ना मैम? ये यस इंक्लूड है, ये सारा ही पूरा चैप्टर इंक्लूड है. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. चैप्टर 5 इज इंक्लूडेड, चैप्टर 3 इज इंक्लूडेड. ये चैप्टर 5 मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है. ओके मैम. So this complete chapter is included.
डिबेंचर्स आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, डिबेंचर्स मैंने आपको करवा दिया है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स मैंने करवा दिया है आपको, बॉन्ड्स भी मैंने आपको करवा दिया है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी करवा दिया है, वेंचर कैपिटल ये मैं आगे आपको सब करवा चुकी हूँ। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैंने करवाया आपको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैं आपको करवा चुकी Yes, हूँ। ma'am. काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, बेसिक ऑफ टाइम, परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको करवाया है, किस करवाया है? Yes, ma'am. ये करवाया था मैम, जो डेली बेसिस पे मैम। ठीक हो गया। सो इन केस इनमें आप लोग स्लाइड से क्रॉस चेक कर लें, इन केस अगर बीच में से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के लिए मैंने आपको फर्दर डिफरेंट जगह से कंटेंट आपके साथ शेयर किया है। सो इन केस अगर आपको लगता है इन 3 स्लाइड्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने मिस किया है, या अगर आपको ऐसा लगता है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट वीक से पहले बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीक में आपकी वाली क्लासेस ले लूँ और वो Okay, कवर ma'am. कर लें हम। तीसरा कौन सा चैप्टर है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, ओके। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपका जी मैम मैं आता हूँ 2 मिनट में मैम। जी श्योर, टेक योर टाइम। मैम एक कॉल करनी है, बस आता हूँ मैं। Okay, take your time. So, time, Shafila, is your presentation ready now? Shafila, Abdullah, Muhammad Umar, Muhammad Gul, Muhammad Haris, Nimra, Shakir, Zaini, Faiz. If you guys are present, then I need your response as well in the class. Yes, ma'am. Okay, so आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है। जी एक मिनट बस, जस्ट मैं इसको इस स्लाइड को एंड कर लूँ, आप देख लें। ऑल ऑफ यू, आई नीड लाइक योर फीडबैक, आप मुझे बताएं इसमें कुछ टॉपिक रह गया है जो हमने नहीं कवर किया, सो डू लेट मी नो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में वो वाले टॉपिक्स करवा दूँ। और या अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई इसमें टॉपिक है तो डू लेट मी नो देन। Okay, नेक्स्ट ma'am. वीक में करा दूँगी, ठीक है। इसको एक बार वोट देख लें, ये लास्ट स्लाइड है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने मैम जी क्या मैं अभी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकता हूँ? शफीला, कौन बात कर रहे हैं? शफीला शुरू करूँ मैम? जी शुरू करें। चलें, इसको हम बाद में करेंगे। शफीला अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। ओके मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो थोड़ा वेट करें मैम। इट्स ओके। तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हम कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया है आपका, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज देख लें, इसको सॉल्व करने का देख लें। फ्यूचर वैल्यू आप कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह देख लें, ठीक है। ये आपका हुआ है डब्ल्यू मनी, रूल ऑफ 72 नहीं, रूल ऑफ 72 मैंने आपको नहीं करवाया, इसको छोड़ दें, ठीक है। रूल ऑफ 72 को प्रेजेंट, इसके लिए मैंने आपको सेपरेट स्लाइड से करवाया था। इफ आई हैव शेयर्ड देम, दो स्लाइड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एन्युइटीज, मैंने टाइप्स ऑफ एन्युइटीज करवाया आप लोगों को? No, ma'am. अच्छा, ये ज़रा लिख लें, मुझे फिर टेक्स्ट कर दें, मुझे ये मैसेज में बता दें। टाइप्स ऑफ एन्युइटीज मैंने आपको करवाना है। टाइप ऑफ एन्युइटी रहता है इस चैप्टर में आपका, बाकी कवर्ड है, ठीक है। सिर्फ टाइप ऑफ एन्युइटीज चैप्टर में रहता है, बाकी ये आपका चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट है, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ एन्युइटी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स हैं आपके, और जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आपका जितना कुछ मटेरियल करवाया है वो सारे इंक्लूडेड हैं जो क्लास में मैंने आपको करवाया है। स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर से रिलेटेड। इज इट फाइन? फाइल पता नहीं क्या गायब हो गया। अच्छा, इतनी देर मीनवाइल कोई और प्रेजेंट कर दे, इसके बाद आप फिर रेडी हो सकते हैं। जी ज़ैनब, आपको मैं शफीउल्लाह ज़रा ज़ैनब को होस्ट बना दें ताकि वो प्रेजेंट कर दे। ज़ैनब, आप नहीं कहा था ना आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं? जी मैम, मैं करना जी चाह जी, रही हूँ। तो शफीउल्लाह ज़रा ज़ैनब को आप वो बना दें, होस्ट बना दें जल्दी से। शफीउल्लाह, यस मैम। ज़ैनब को होस्ट बना दें। मैम डिवाइस स्टोरेज में मैंने सेव कर भी लिया, फिर भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या मसला है। कोई बात नहीं, आप इतनी देर ज़ैनब को बना दें, फिर आप चेक कर लें, ठीक है? मैम ये मैम वो अगर फाइल मैं जो है वो सिंपल शेयर करेंगे। वीडियो, वो जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है ना, एक जी जी स्क्रीन रिकॉर्डर होता जी है, क्या जी, होता है, अगर उसके जरिए से मैं अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूं तो? ठीक है, शाम को सेंड कर दें आप, ठीक है, शाम तक सेंड कर दें। अभी ज़ैनब को बना दें। सही है मैम, मैं उस तरह करके आपको सेंड कर दूंगा। जी जी, ज़ैनब को बना दें ठीक है मैम। अभी। ओके। बट मेक श्योर कि आप लोगों की स्लाइड्स जो हैं वो अपलोडेड हों आपके LMS पर। अगर स्लाइड नहीं अपलोड, आपको इनसे किसी को मार्क्स नहीं मिल सकते फिर, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ उसी के साथ है आपको मार्क्स देने का। यस मैम, अपलोडेड है। बस ठीक है जी। शफीला अभी बना मैंने दिया आपने? ज़ैनब को होस्ट बना दिया मैम। ओके ज़ैनब, यू कैन टेक स्टार्ट। ओके मैम। आप लोगों ने अपनी डेट शीट ले ली है? यू आर होस्ट। आप में से किसी ने डेट शीट ले ली है अपनी? नो मैम। नहीं ली मैम। यस मैम, कल हम गए थे लेने। अच्छा, तो कब है आपका बिजनेस फाइनेंस की, क्या डेट आ रही है? मैम फर्स्ट पेपर ही बिजनेस फाइनेंस का है, ऑन विच 21st डेट? को मैम। 21st को है? ज़रा यस अच्छा, मैम। 21st को, सही, ठीक है मैम। मैम ये बाकी सब यूनिवर्सिटीज में मतलब मैम एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। ये आप लोगों का कब है, ऑनलाइन है या आप लोगों ने जाकर मैम देना अभी है? तक पता ही नहीं है मैम। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अभी एग्जाम हो रहा है मैम, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, मेडिकल के स्टूडेंट हो गए, सबका मैम एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है मैम। तो लेट्स सी, आप लोगों की भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ओके मैम। क्योंकि आप लोगों की यूनिवर्सिटी तो 1st से खुल रही है ना, 1 फरवरी से। यस मैम, सही, पता चल क्योंकि जाएगा यूनिवर्सिटी तो इंशाल्लाह। 1st फरवरी से मैम खुलेंगी। जी, सो व्हाट डू यू पीपल वांट, ऑनलाइन हो कि मैम फिजिकल? ऑनलाइन होना चाहिए मैम। ऑनलाइन आप लोग, चलिए देखें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें जाना। मैम ये शफी कह रहे हैं कि मैं क्लास लीव करके अभी जो प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड कर दूं। ठीक है, बाकियों को सुने, बाकी की प्रेजेंटेशन, क्योंकि इनके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं कोर्स में। ओके। अच्छा, इनमें से आप में से कोई ऐसा है? मैम बात सुने। जी 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 मैम जाना। यहाँ पे मुझे तरीका नहीं आ रहा करने का। अच्छा देखिए ज़ैनब, आप होस्ट बन चुकी हैं, तो यहाँ पे आपके शेयर पास लिखा हुआ है। ऑप्शंस क्या हैं, ज़रा से ऑप्शंस बता दें। जो नीचे साइड पे ब्लैक कलर के बार में ऑप्शंस आ रहे हैं आपको। मैम न्यू शेयर का कोई ऑप्शन है? ये शेयर पे जाना। हाँ, न्यू शेयर के ऊपर जाएं आप, तो आपके पास जी मैम। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा। स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है हाँ, मैम। स्क्रीन पे क्लिक कर लें, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। फिर इसको अलाउ कर दूँ? अलाउ कर लें। मैम फिर क्या करना है?
आपकी स्क्रीन, किसी को स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे तो स्क्रीन नहीं विजिबल। पता नहीं मैम क्यों नहीं हो रहा। जहाँ पे नीचे शेयर लिखा हुआ है ना मिड में, बिल्कुल उसके नीचे जो है वो स्क्रीन शेयर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगी खुद ही। तो नहीं हो रही ना, मैंने स्क्रीन पे क्लिक की। हो रहा है, शेयर करो, हो रहा है। शेयर में जाकर डॉक्यूमेंट पर आया? क्लिक कर दे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर ले तो फिर हो जाएगा। नहीं हो रहा मैम। सर आप लोग गाइड करें। आप लोग सर जैनब को गाइड करें स्क्रीन शेयरिंग का। मैम जहाँ पे वो शेयर का ऑप्शन आता है ना मिड में, जैसे ही वो उस पर क्लिक करोगे तो पोस्ट, नीचे अच्छा वो इसमें आएगा लिखा स्क्रीन हुआ है। शेयर। फाइल हाँ वगैरह भी होंगी, पिक्चर वगैरह भी होंगे, लेकिन जी, ठीक है आप करें गाइड थोड़ी। तो जो नीचे सबसे सबसे नीचे होगा स्क्रीन शेयर। हाँ ना, मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ ना, तो बट उसपे नहीं हो रहा ना। अलाउ भी कर दिए। उस पे हो जाएगा, हो जाएगा, दोबारा होता ट्राई है उस करें, पे। वन बाय आप वन मुझे एक एक बना दो स्टेप एक दफा, बताएं। बस बना दो मुझे। अच्छा इसके लिए बेस्ट चीज़ ये रहती है कि मुझे आप जरा लोग होस्ट पहले बना एक दो, फिर डमी मैं आपको कॉल कर समझाता लिया हूँ। करें। जूम पे जाके डमी कॉल खुद को करें, फिर जितने ऑप्शंस आते हैं आप लोग वो ऑप्शंस ट्राई करें, सो दैट क्लास ड्यूरिंग क्लास ये इश्यूज फेस ना करने पड़े। उनको गाइड करें कि उन्होंने होस्ट कैसे बनाना है आपको। मुझे मुझे होस्ट बना दें। पार्टिसिपेंट पे जाएं और वहाँ पे जहाँ जहाँ मेरा प्रोफाइल आ रहा है वहाँ पे क्लिक करें तो मेक होस्ट होगा वहाँ पे। वकार कैसे बनाऊं? पार्टिसिपेंट पे जाए, पार्टिसिपेंट, मेरा जो प्रोफाइल आ रहा होगा चलिए ना उस यहीं पर पे। क्लिक करें, उस पर क्लिक करें और वहाँ पे होगा कि मेक होस्ट ऑप्शन होगा एक। ठीक है। अच्छा हो गया। अब देखिए थर्ड लास्ट जो है वो नीचे से थर्ड लास्ट है स्क्रीन, ठीक है। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम, तो इस पे आपने करना है स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो जिससे अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये देखो नजर आ रहा है। वकार ये किस पे गए थे आप? एक मिनट मैं स्क्रीन आपको पे गई बताता थी हूँ। ना? जी ये स्क्रीन पे जाके आपने स्क्रीनशॉट स्टार्ट लेकर नाउ जरा सेंड करना है। करो। तो मैं गई थी ना, बट नहीं हो रहा था। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही थी। ये स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिया, एक मिनट ग्रुप में। इतनी देर कोई और प्रेजेंट करना चाहते तो वो प्रेजेंट कर दे। हु इज नेक्स्ट? शाकिर। ओके शाकिर, इतनी देर आप प्रेजेंट कर दें। आप मीनवाइल इनको गाइड कर दें स्क्रीनशॉट से कि किस तरीके से उन्होंने स्क्रीन शेयर करनी है, ठीक है। होस्ट बना दें शाकिर को, और शाकिर जरा जल्दी करें क्योंकि अब टाइम कम है हमारे पास। मैंने अभी थोड़ा बनाया है, दूसरे क्लास में मैं प्रेजेंट करूंगा। Shakir, you don't have more time now. It's been 2 weeks, and now this is the last class that you can present. Otherwise, you won't get any marks. It would be marked as 0. Okay. मैं Any other? इंशाल्लाह अगली क्लास में। No, there is no next class. कोई क्लास नहीं है, अगर आपने करना है तो अभी कर लें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास नहीं है। अच्छा और कोई कौन है? निम्रा, जैनी, निम्रा, यस मैम। आपने प्रेजेंट करना है अभी? जी मैम। ओके निम्रा को फिर होस्ट बना दें।
Imra, you are host now. So kindly Yes. make the process quick. हमारे पास अब कम time है. And start your presentation. आप लोग स्क्रीन शो हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है. Okay, ma'am. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Nimra and doing bachelor's in business administration, 3rd semester, and the subject is business finance, and the topic on which I'm gonna present is about speculation, types of speculators, and their role in stock market. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और तो आज मैं इसको ज़रा डिटेल से समझाऊंगी कि स्पेकुलेशन क्या है और स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं और इनका रोल क्या है स्टॉक मार्केट में. अब स्पेकुलेटर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे स्पेकुलेशन होता क्या है. एन एक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी एनी एसेट जिसकी कोई वैल्यू होती है, दैट कैन बी लैंड, बॉन्ड, एनीथिंग, डिबेंचर्स एंड शेयर्स. तो इनकी जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करने के लिए जो स्पेकुलेटर्स जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इसको स्पेकुलेशन कहते हैं. मतलब उनका जो मोटिव यही होता है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, मींस अब किसी कंपनी की शेयर्स हैं, अब उसकी जो फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो 10 रुपीज़ हैं, लेकिन अब आगे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो आगे जाके 10 से 15 होने वाली हैं, तो वो उन शेयर्स को ख़रीद के आगे जाके उनको सेल आउट कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट. अब स्पेकुलेशन मतलब एक बेस सॉरी, ये जो होता है इट टोटली बेस्ड ऑन होप. मतलब ये अंदाजा लगाते हैं, इसमें इनको रिस्क, दीज आर द रिस्क टेकर्स, इनको जो है रिस्क भी होता है. ज़रूरी नहीं कि अगर ये अंदाज़ा लगाएं कि शेयर्स की जो प्राइस है वो अबव जाएंगी, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो लो भी हो सकती हैं. जो स्टॉक मार्केट जो है क्रैश डाउन भी कर सकती है, इसलिए इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन होप. अब स्पेकुलेटर्स जो होते हैं ये वही लोग होते हैं, द पर्सन हु टेक पार्ट इन स्पेकुलेशन प्रोसेस और कॉल स्पेकुलेटर्स. अब वही इन सिंपल वर्ड्स ये वो पर्सन है जो अंदाज़ा लगाता है कि सिक्योरिटी या बॉन्ड या एसेट की वैल्यू अगर फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो मैं इसको अभी लेके रिजर्व कर लूँ और फिर इसको आगे जाके सेल आउट कर दूँ. सो दीज आर कॉल्ड स्पेकुलेटर्स. नाउ द टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स. अब स्पेकुलेटर्स की जो होती हैं वो 4 टाइप्स हैं, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दीज आर बुल, बेयर, स्टैग एंड लेम डक. सो नंबर 1 इज बुल. So, a speculator who indulges in speculative buying activity with expectation of the future raise in the prices of securities. In simple words, कि ये जो होता है ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है स्टॉक मार्केट की तरफ. ये सोचता है कि मैं अगर पॉजिटिव नज़र से देखूं, अगर मतलब स्टॉक मार्केट को एक पॉजिटिव नज़र से देखता है कि कुछ अरसे में जो है इस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस जो है वो हाई होने वाली है, तो मैं इस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस मतलब इस कंपनी की शेयर्स को रख के वो रिजर्व कर लेता है और फिर जैसे ही कुछ महीनों बाद उनकी जो है प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो वो उसको सेल आउट कर देता है. इस चीज़ को बुल का नाम दिया गया क्योंकि ये बुल की तरह अपने एनिमीज को जो है हवा में अपने हॉर्न्स के जरिए उछाल देता है. इन सिंपल वर्ड्स ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो समझते हैं कि मार्केट अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगी तो उसका फ़ायदा उठा के वो प्रॉफिट गेन कर लेंगे. जैसे कि पहले भी एक एग्जांपल दी है कि अगर एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, वो उसको लेकर रिजर्व कर लेंगे और फिर आगे जाके जब मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर उस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस हाई हो गई तो वो उसको सेल आउट करके 5 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन कर लेंगे. Now bear, अब bear जो है a speculator who expect the future fall in the prices of securities. This is totally opposite to the bull. अब जो बुल है वो पॉजिटिव व्यू रखता है, वो जो है एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जो है इस शेयर्स की प्राइस हाई हो जाएंगी, लेकिन बेयर जो है उसके ऑपोजिट सोचता है. वो ये सोचता है कि इस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस जो है वो फॉल डाउन हो जाएगी, कंपनी क्रैश कर जाएगी, तो मैं उस वक्त उन शेयर्स को लेके वो पहले से ही एक बंदे के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. अब एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगी. जैसे अब बेयर स्पेकुलेटर जो है एक बंदे के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसको पता होता है इस कंपनी की शेयर्स कुछ अरसे में 250 रुपीज़ से
200 हो जाएंगी, लेकिन वो झूठ की बेस पे उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एक बंदे से कि भाई इस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस जो है वो 250 से 220 होने वाली हैं। तो जब उस कंपनी की शेयर की प्राइसेस 200 पे तक गिर जाती हैं, तो वो उस बंदे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसको 220 के शेयर्स दे के तो 20 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट गेन कर लेता है। इस तरह बेयर जो है वो मतलब फ्यूचर में इसी यही एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है कि फ्यूचर में इस शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, तो इस बेस पे वो फिर इस तरह प्रॉफिट कमा लेता है। अब स्टैक जो है स्पेकुलेटर हु सब्सक्राइब अ न्यू इशू विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग देन सून आफ्टर अलॉटमेंट। स्टैक जो होता है वो ऐसा है कि कैसे कि ये वो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब ये वो स्पेकुलेटर्स हैं हु लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। मतलब ये जो है किसी न्यू कंपनी का इंतजार करते हैं, जैसे ही कोई न्यू कंपनी मार्केट में आती है उनके शेयर्स को फौरन से खरीद लेते हैं विद द इंटेंशन कि जैसे ही इसकी मार्केट में इन शेयर्स की लिस्टिंग होगी तो वो उसको फौरन उसी वक्त बेच के तो अपना मुनाफा कमा लेंगे। तो ये स्टैक है मतलब कि ये एक प्रीमियम हंटर है। ये जो है फौरन से ये मतलब न्यू कंपनी का इंतजार करते हैं कि जैसे ही कोई न्यू कंपनी ओपन हो तो उनके शेयर्स को खरीद लें और फौरन उसको सेल आउट कर दें जब जैसे उनकी लिस्टिंग हो जाए, क्योंकि जाहिर है शेयर्स की प्राइस हाई हो जाती है जब उनकी लिस्टिंग होती है मार्केट में, तो इस तरह वो प्रॉफिट गेन कर लेता है। Now the lame duck, fourth and last one is lame duck. Lame duck, it is related to the bear. When a bear finds it difficult in fulfilling his commitments, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इसको, अब ये रिलेटेड है बेयर से। कैसे इसको उसी एग्जांपल से मैं समझाऊंगी जो मैंने बेयर स्पेकुलेटर में दी थी। लाइक अब बेयर जो है वो ये सोचता है कि मतलब इस कंपनी की शेयर जो हैं वो फॉल डाउन हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी 250 से। लेकिन होता ये है कि जैसे कि मैंने कहा था कि इट इज टोटली मतलब ये अंदाजा लगाते स्पेकुलेटर्स, उनको मतलब यकीन नहीं होता फुल कि इसी तरह मतलब शेयर्स हो सकता है हाई भी जा सकती हैं। तो 200 तक गिरने के बजाय उनकी प्राइसेस जो हैं वो 200 से 300 मतलब हाई हो जाती हैं, तो उसको जो है लॉस उठाना पड़ता है। उसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ऑब्वियसली इस बंदे के साथ कि मैं तुम्हें ये 220 का शेयर मतलब आप पे सेल आउट करूंगा, लेकिन होता ये कि वो 200 तक गिरने के बजाय शेयर्स की प्राइसेस जो हैं वो 300 तक बढ़ जाती हैं, इसलिए उसको 80 रुपीज़ का लॉस होता है और इसी वजह से उसको मार्केट में जो है एक लेम डक की तरह सरवाइव करना पड़ता है, इसलिए इसको लेम डक स्पेकुलेटर का नाम दिया गया है। अब रोल जो है स्पेकुलेशन का यही है कि स्टॉक गोइंग अप और डाउन, इससे हमें यही पता चलता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश डाउन कर रही है या अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रही है, और एक कंपनी की जो है वो प्रॉफिट गेनिंग और लॉस का भी हमें इससे अंदाजा होता है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन होगी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू। Any question? Were you guys listening? अच्छा, कौन समरी देगा जो जेनी ने सॉरी जो निम्रा ने प्रेजेंट किया है? निम्रा जी मेरा एक से हाँ पूछे। क्या ये जो स्पेकुलेटर्स हैं जस्ट ये इनका काम बस प्रॉफिट से होता है कि नहीं? बिल्कुल, बस ये प्रॉफिट शॉर्ट टर्म जनरेट ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करने के लिए। मतलब ये मार्केट में जो है मतलब एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ अगर ये इस कंपनी की शेयर्स जो हैं वो हाई जाने वाली हैं या लो जाने वाली हैं, तो वो इन सिचुएशंस को देख के अपना प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं होते ना? नो, ये लॉन्ग टर्म गेन के लिए नहीं, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए है। मोहम्मद उमर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Okay, so it's very important for all of you to ask questions. In case if you want to ask questions, then I will ask you to summarize the entire presentation. So, मोहम्मद उमर, जो आपने सुना क्वेश्चन आप पूछ लें माइक को अनम्यूट करके। Waqar, if you have any question, you must ask her. Faiz, your participation is important Excuse me, in this ma'am. class. जी जी मैम निम्रा से क्वेश्चन है। जी जी पूछिए।
स्पेकुलेटर और ब्रोकर में क्या फर्क है? स्पेकुलेटर तो ब्रोकर से चेंज है, मतलब अब ब्रोकर जो है वो तो मेरे ख्याल से दो जो लोग होते हैं उनको, मतलब उनकी वो जो शेयर्स मेरे ख्याल से जो बेचना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, उनको आपस में मेरे ख्याल से उनकी कुछ वो करता है। लेकिन स्पेकुलेटर जो है वो अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए, मतलब स्पेकुलेशन के लिए वो करता है, मार्केट में शेयर्स को ढूंढता है अगर इनकी प्राइसेस लो जाने वाली हैं या हाई जाने वाली हैं। तो जो ब्रोकर होता है वो भी तो अपना परसेंटेज निकालने के लिए, कमीशन लेने के लिए जो है वो किसी और बंदे को जो है ना ठीक है, वो लेकिन इन्वेस्ट उसको करने के मेरे लिए ख्याल कहता है। से तो जो इतना स्पेकुलेटर प्रॉफिट होता है नहीं वो भी होता, वो मतलब वो खुद तो प्रॉफिट उसको भी होता मतलब है ना। जी, लेकिन वो खुद तो नहीं बेच रहा होता ना शेयर्स को, मतलब ब्रोकर वो तो दो लोगों को तो जो आपस में स्पेकुलेट मिलाता है, उनसे तो जो कमीशन लेता है फिर। स्पेकुलेटर होता है तो अपना पैसे नहीं लगाता ना, वो तो मतलब कि बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे उनको जो है ना वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उनसे कमीशन और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। जो ब्रोकर होता है वो सेम वही चीज करता है। स्पेकुलेटर्स तो जो शेयर्स होते हैं वो उनको खुद ही परचेज कर लेता है उसी वक्त। वो कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, कुछ जो है रिजर्व करके रख लेते हैं। लेकिन आई थिंक जो ब्रोकर है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, इफ आई एम राइट, तो ब्रोकर जो है वो दो इन्वेस्टर्स को आपस में मेरे ख्याल से उनकी जो है डीलिंग करवाते हैं आपस में, कि आप जो है इस पे शेयर बेच दें, और आप जो आप शेयर जो ढूंढ रहे हैं वो फिर आप इसमें उनको मिलाते हैं, फिर उनसे कमीशन गेन करते हैं। जब भी स्पेकुलेटर, मैं इसको ज़्यादा क्लियरली आंसर दे देती हूँ, जब भी स्पेकुलेटर का वर्ड आएगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कस्टमर एंड सम स्टॉक कंपनी। तो ये स्टॉक से जितना, स्टॉक एक्सचेंज और इस सब से जितना डायरेक्टली लिंक होता है स्पेकुलेटर का होता है। लेकिन जब वर्ड ब्रोकर आएगा तो इट कैन बी लाइक अ पर्सन हु अरेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। तो अब वो जरूरी नहीं है कि वो डील सिर्फ स्टॉक की हो, वो डील और भी किसी चीज की हो सकती है। तो ब्रोकर इज अ ब्रॉडर टर्म, speculator is basically a broker, but of which thing? Of basically of stocks. This is the difference. I hope is it clear to you now, Vakar? यस मैम। वो ब्रॉडर टर्म है और उस ब्रॉडर में आपके पास स्पेकुलेटर आ जाएगा, तो इट मींस एक्सपेक्टेड रेज मैम डिलीवर्ड। ज्यादातर जो ब्रोकर होते हैं मैम वो तो मतलब कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में जो मतलब जी कि लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं जी वो वहाँ उस तरफ मतलब कि उस फील्ड में ज्यादातर ब्रोकर जो है वो लोगों को इन्वेस्ट कराने की कोशिश करते हैं। बाकी मतलब कि जो इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स मतलब कि जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं ठीक है। तो ये बेसिकली जो ब्रोकर है कर, ठीक है, उसका फाइनेंस, लेकिन ब्रोकर कैन बी एनीवन who acts like a middleman. वकार आपकी आवाज नहीं आ रही यार, आप माइक बंद कर लो। So well, let me clear his question. So broker जो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है स्टॉक से ही रेलिवेंट हो। जो स्टॉक को करेगा उसको हम इन्वेस्टमेंट ब्रोकर भी कहते हैं। और जो ब्रोकर है ये बेसिकली मिडिलमैन के तौर पे काम करता है। ये आपके बिहाफ पर, किसी दो लोगों के बिहाफ पर बाइंग एंड सेलिंग करता है एज अ मिडिलमैन के तौर पर। बीच का जो आदमी होता है, एज अ मिडिलमैन जो है इसकी वर्किंग होती है। सो लाइक जब आपको इवन बिटकॉइंस लेने हैं उसमें भी ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसमें ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट स्पेसिफिकली जो आपके स्पेकुलेटर्स हैं दे आर linked with the shares and stocks.